Assalamu alaikum students, hope that you are fine and having fun these days. So this video is about your summer pack problem, so I'm going to resolve those problems in this video. The first question is about the 6 basic institutions of the United Nations organization. मैंने इसको थोड़ा सा short form में लिखा है. U stands for United, N stands for Nations and O stands for Organization. So United Nations organization को हम उर्दू में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से जानते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू राइट और मेंशन द 6 बेसिक इंस्टीट्यूशंस. 6 अदारों के नाम लिखने आपने जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ जनरल असम्बली, द सेकंड वन इज़ सिक्योरिटी काउंसिल और सलामती काउंसिल, द थर्ड वन इज़ ट्रस्टीशिप और तौलीदी काउंसिल, द फोर्थ वन इज़ इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, माशी और माशरती काउंसिल, द फिफ्थ वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ, the sixth one is secretariat, right? So these are the 6 basic institutions of the United Nations organization. The second question is about permanent members of Security Council. Basically आपने सलामती काउंसिल के जितने भी मुस्तकिल मेंबरान हैं उनकी तादाद आपने बतानी है. तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ बेसिकली 15 members, among which 5 members are permanent and the remaining are not permanent. So let's have permanent members only. The Russia, Rus, Britannia, Britain, China, and the fourth one is France, and the fifth one is America. So these are the 5 countries which are permanent members of the Security Council. They are not going to change, they are permanent anyhow, right? So these are the permanent members of the Security Council. So let's come towards the Baghdad Pact. Baghdad Pact was basically initiated by और फाउंडेड बाय टर्की एंड इराक. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले इन लोगों ने जो है वो इसका आइडिया जो था वो दिया और 26 फरवरी 1955 में जो है वो ये पैक्ट साइन किया गया. लेकिन लेटर ऑन अर्लियर टर्की एंड इराक इनवाइटेड पाकिस्तान टू जॉइन दिस पैक्ट, बट पाकिस्तान वाज नॉट एज मच स्पिरिटेड और not in the favor or not willing to join this pact, but on the pressure or on the on the insistence of America and Britain, Pakistan signed this pact. Not only Pakistan but Britain, Iran, Iraq, Turkey, these all of these countries signed this pact. So this was basically mutual defense and security pact was signed in Baghdad, right? So the next question is about Indus Water Treaty 1960. सिंध असमाता जो था वो साइन किया गया 1960 में with the help of World Bank to resolve the water between Bharat and Pakistan. These are the rivers which was granted to Pakistan and these are the rivers which was granted to Bharat or India. The next question is about World Trade Center tragedy take place. So जो वो आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो वाक़या है वो कब और कहाँ पर हुआ. सो यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ WH वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज़ व्हेन, कब हुआ. सो इट वाज डन इन 11 सितंबर 2001, जिसको हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं. आपने अक्सर व बेशतर ये सुना होगा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई. सो दिस वाज द ट्रेजेडी विच वाज हेल्ड इन और डन in New York city of America, और here you can see the picture of this tragedy as well. ठीक है. सो पाकिस्तान के जो था वो बहुत ज़्यादा विक्टिम बन गया इसके बाद. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रेजेडी के बाद उसके ऊपर जो है वो टेररिज्म का टैग लग गया स्पेसिफिकली. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज बिहाइंड ऑफ दिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रेजेडी और मिस्ट्रीज एज वेल. The next question is 10 member countries of Islamic Conference. आपने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के जो 10 मुस्लिम ममालिक हैं उनके नाम बताने हैं. मैंने आसान से लिख दिया ताकि आप आसानी से याद कर सकें, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. Next question है Treaty of Istanbul. This treaty was basically signed between 3 countries.
पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। ठीक है, सो इस ये जो नाता था वो 1964 में हुआ पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के बीच में। और चूँकि ये इस्तंबुल में हुआ, इसलिए इसको माता इस्तंबुल या ट्रीटी ऑफ इस्तंबुल भी कहते हैं। और इन द रिज़ल्ट ऑफ दिस ट्रीटी, all of these countries, all of these three countries came closer to each other, and they have signed RCD, yani Regional Cooperation Development, and the later on they have replaced it with the name of ECO, Economic Cooperation Organization, which have 10 members right now. The next question is about the first supply of F-16 to Pakistan by America. आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो F-16 तैयारी यानी F-16 के जो तैयारे हैं वो दिए गए, तो वो कब दिए गए, और जो था उस वक़्त आप लोगों के पास जो हुकूमत थी वो किन लोगों की थी। सो अमेरिका में जो थे वो उस वक़्त प्रेसिडेंट रेगन जो थे वो मौजूद थे। और ये जो फर्स्ट सप्लाई जो थी वो दी गई हमें दिसंबर 1980 में दी गई। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब, जो कि एक डिक्टेटरशिप का किरदार जिन्होंने बखूबी अदा किया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लियाकत अली ख़ान साहब विज़िट टू अमेरिका। लियाकत अली ख़ान साहब जो थे उनका अमेरिका का विज़िट जो था वो कब हुआ। सो 1950 में बेसिकली जो है वो लियाकत अली ख़ान साहब ने अमेरिका के इनविटेशन पर अमेरिका का विज़िट किया, और ये विज़िट जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सो उस वक़्त हमारे प्रेसिडेंट तो नहीं थे, हमारे गवर्नर जनरल थे कायद आज़म साहब, और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली ख़ान साहब थे। सो लियाकत अली ख़ान साहब ने 1950 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन के कहने पर, इनके इनविटेशन पर जो है वो अमेरिका का विज़िट किया, और ये बहुत सक्सेसफुल विज़िट रहा, क्योंकि इसमें हमने बताया कि हम लोग जो है वो दुनिया का नक्शा चेंज कर चुके हैं, एंड वी नीड सपोर्ट एंड फेवर फ्रॉम दीज कंट्री।